this family. We are your today's host. I am Miss Rupali. I am Miss Surekha. We both welcome you on this August gathering. Thank you, Miss. Dear parents, I take this opportunity to thank you all for your overwhelming response. Though you are very familiar to us, but some formalities are to be carried out, as Rupali Miss will tell you now. Yes, this is a lovely measure of parent and teacher union. Why it is necessary? It's very important aspect of each and everybody's life to have a proper harmony between teachers and parents. It is a must. So this is a proof that you are here. How much you take care of we people and your child as well. तूफान तो कहीं आएंगे जिंदगी में, पर हमारी फितरती फौलादी है, आने दो, हम देख लेंगे. As this is the motto and mantra given by our beloved principal ma'am. ना तो कोई कोविड का डर, ना कोई आंधी गुलाब की, ना कोई कोविड का डर, ना कोई आंधी गुलाब की. आपको तो फिक्र है बस हमारी और हमारे बुढ़ावे की. Before every occasion, it's our tradition to ignite the light and take the blessings of Almighty. So, I request our below respected principal ma'am, Aarti madam, HM of primary, and Shahina madam, HM of KG, to ignite the lamp and officially inaugurate the function. May I request ma'am? Aarti miss, Shahina miss. Thank you, Rupali miss. The light of joy has been lit. Thank you all the dignitaries. Now, the slope has been lit. तमसोमा सही है, दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो रोशनी कितनी देता है वो महत्वपूर्ण है. Thank you, Rekha miss. It was indeed melodious work. Dear parents, for child's overall development, there should be a harmony between parents and teachers. Then only the learning process can be carried out and more effective. Isn't it true, Rupali miss? Yes, of course. That's why we people are here. Ladies and gentlemen, welcome is not just a word, but it's a kind gesture and a token of love on behalf of Miss Chandler English School family. So, your presence itself proves
that how much you are important for us and we people you are. So I request you, all of you, to join us wholeheartedly for this coming silk program and events. Thank you, Rupali Miss. Now, it is the time to honor our parent member with token of love. So, I call upon Shubhangi Miss, class teacher of grade 1st, to welcome father member Mr. Ramdayal Gupta and mother member Mrs. Aarti Kachwa. Please, ma'am. Both are absent. Okay. They must be coming. Okay. Now I request Sulachana Miss to welcome second grade father member Mr. Manish Vakodikar and mother member Mrs. Prachi Marwalkar. Prachi Marwalkar ma'am. Okay. Let's welcome her, Sulachana Miss, with a token of love. Thank you, Sulachana Miss. Thank you, ma'am. Thank you, Rupali Miss. I Kirti Miss, class teacher of first standard, to welcome parent member Mr. Thore sir and mother member Mrs. Kalyani Lal. Okay, great. Now, Varsha Miss will welcome father member of grade 4, Nitin Wagmaresar. And mother member is there, Asfar Khan ma'am. Okay, thank you. Miss. Now it's turn for grade 5th class teacher. Shraddha Miss will welcome father member Mr. Sharad Ganjewal and mother member Mrs. Amrapali Gaikwad. Both are there. Okay, let it be. Thank you, Shraddha Miss. The ceremony should continue thus. Those who are present over there should not be missed out, isn't it? Yes. Okay, I request Sudha Miss to welcome mother member, ma'am Radhika Hindukar of grade 6 standard. Grade 6. Thank you, Sudha Miss. Thank you, Rupali Miss. Thank you, Rupali Miss. Thank you, ma'am. Now I call upon Rekha Miss, class teacher of grade 7, to welcome parent member Mr. Jambir Ansari and mother member Mrs. Sarita Khadge. Both are absent. Let it be. Okay. Okay, thank you, Rekha Miss. So let's go further. Deepa Miss will extend her gratitude to her 8th grade parent, Mr. Rajesh Vaspisi, and mother member, Mrs. Pachadana. Pachadana outside? Okay. Welcome, sir. Thank you, Rupali Miss. Now, I call upon my co-host, Rupali Miss, class teacher of grade 9, to welcome parent member, Mrs. Dhanoti ma'am. Come on. Thank you, Rupali Miss. Thank you, ma'am. Last but not the least, I request Mamta Miss, class teacher of grade 10, to welcome parent member Mrs. Vandana Khetia. Thank you, Mamta Miss.
the this particular session 2021 and 22. Sri Adhikar sir, designation President. Mrs. Vandana Thete ma'am, Vice President. Was Mrs. Aparna De ma'am, Secretary of High School. Mrs. Deepa Shukla, Teachers Representative. Mrs. Aarti Sinha Madam, Secretary for Primary Section. Now it's time for member. Mrs. Ramdayal Gupta, Grade 1, member as a designation. For Grade 2, Mr. Manish Vakodikar, of course as a member. For Grade 3, for Grade 4, Mr. Nitin Vagmare as a member. For Grade 5, Mr. Sharad Lanjewat sir as a member. For Grade 6, Mr. Abhijit Bhamode sir as member of the standard. For 7th grade, Mrs. Savita Khadbi madam as a member. For Grade 8, Mr. Rajesh Vajpayee sir again as a member. And for Grade 9, Mrs. Mrunmayee Ganote ma'am as a member. Last but not the least, for Grade 10, we have Mr. Manoj Samarth as a member with us. Now let us have some helping parent members. Helping parent members, okay? Mrs. Aarti Kachwa ma'am, Mrs. Prachi Marwadkar ma'am, you are present here. Mrs. Asifa Khan ma'am, Mrs. Amrapali Gaikwad ma'am, Mrs. Radhika Dirulkar ma'am, Mr. Zahid Ansari sir, and last, Mrs. Varsha Pathrabe madam. These are helping parent member in our curricular and extracurricular activity, is whatever you want to suggest. So, is it over? Assist parent member. Okay. After a welcome ceremony and hearing the names of parent teacher member and assessment staff and all the things, now it's time for fun. It cherishes our mind and explodes child within us. This is mantra given by our principal ma'am. Each and everybody is having a child within us. कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था. कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था. खेलने की मस्ती थी, ये दिल भी कितना मासूम था. खेलने की मस्ती थी, ये दिल भी कितना मासूम था. कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में? वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था. So, let us try once again. You have a chance to go into your childhood. So, let's have a game, and I request the Pamis to give you some guidelines about the game and do's and don'ts and time of the instruction. So be ready to become bacha once again in absence of your children and students. Okay? Thank you. Good morning everybody. So now we are going to play one game. Just a fun game and memory game. तो मैं हिंदी पे आ जाती हूँ, so all will comfortable with that. कि अभी आपको यहाँ से उठ के जाना है कंप्यूटर रूम में. वहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उसे आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टाइमर रहेगा, वो आपको पूरा देख लेना है. वापस आपको इसी क्लास में आना है. यहाँ आपको पेपर और पेन दे दिया जाएगा. यहाँ बैठकर आप लोगों को वो सारे नाम जो आपने वहाँ पे देखे हैं वो सारे मेमोराइज करके लिखने. कुछ ऐसा नहीं है, काफी पेरेंट्स कम है अपने पास, तो आप आराम से देख सकते हैं. सो क्लासरूम
10 minutes to write. हो गया काम जल्दी I request our principal ma'am to share a few words of secret with you and express her emotion on the occasion of parent-teacher felicitation. Please, ma'am. Very good morning. I think it's good morning only. आज हम लोग यहाँ पे सब आए हैं जस्ट हेलो सबको सुना आ रहा पेरेंट्स टीचर्स PTA हम लोग आज फॉर्म किए हैं जिनके नाम हमारी दीपा में सुपारी किसने बताया आप लोगों को। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड्स भी रखा है। काफ़ी बार ऐसा होता है मेंबर्स फॉर्म होते हैं बट कोई आता है कोई नहीं आता है, बट दिस टाइम वी वांट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसलिए हम लोगों ने साल भर का एक्टिविटीज़ भी प्लान करके रखा है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू हाउ टू वर्क ऑन दोज एक्टिविटीज़। पहली बार हमने एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया है हमारे ही मेंबर्स में से वंदना मैम, तो आपका जो रोल रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। द रीज़न बिहाइंड दैट जो मेंबर्स नहीं कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ को लिए मतलब यू विल बी आर यू ऑल विल बी द वेल विशर्स ऑफ आवर स्कूल। आप बात समझ रहे हैं मतलब आपका हर चीज़ में आप लोगों का एक सजेशन बोलिए सल्यूशन बोलिए। कुछ प्रॉब्लम्स बाहर से आते हैं मतलब आई मीन टू से द बाकी पेरेंट्स इन दैट केस भी आपको उनको समझाना है बिकॉज इट्स ऑल ये हमारी सबकी स्कूल है। जो प्रॉब्लम्स आज हम लोग फेस करते हैं इतना बड़ा जो हार्ड टाइम जा गया था प्लस थोड़ा बहुत अभी भी उसका छाप देखिए छोड़ता ही है, तो जो भी चीज़ें हैं इसको अपने को ओवरकम करना है, इस चीज़ के लिए सपोर्ट होना है। जैसे कई पेरेंट्स थोड़ा सा एडमेंट हो जाते हैं ऐसा नहीं होता ना मैडम ऐसा नहीं। देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चीज़ों को और बिगाड़ देना या ख़राब कर देना फिर कैसा होता है जैसे किसी ने कुछ बोला हाँ वही सही है ऐसा नहीं। मतलब कोई भी ख़राब चीज़ को हमारे पास आना नहीं देना है। वी शुड नॉट बी प्रोवोक टू दैट एरिया। उसके बदले अगर आपके पास कोई चीज़ें आती है उसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो स्कूल की तरक्की होगी। आज हम लोग सब जो इकट्ठे हुए हैं क्यों हुए हैं हमारे बच्चों का अच्छा हो बस। उस चीज़ के लिए जितना हमसे बन पाता है हम लोग उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं एवरीबडी ईच एंड एवरीबडी। और ये जो हमारे पिलर्स बैठे हैं ये तो दिन रात यही सोचते हैं कि मैडम क्या चीज़ करने से हमारे बच्चों का अच्छा हो। ऐसा नहीं है उठे सूठे बच्चे फ़ोन कर देते मैडम ऐसा वो लोग सोचते नहीं है बेचारे बच्चे हैं नहीं समझ में आता मैडम ये नहीं समझ में आया सर वो समझा दीजिए ऐसा होता है। इवन सर को भी कॉल जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वी अप्रिशिएट दैट कोई बात नहीं। तो ये जो हमारी छोटी सी फैमिली है इसको हमें बड़ा करना है। ये बड़ा तभी हो सकता है जब हम लोग सब इकट्ठे हों। इसलिए मैं हमेशा टीचर्स को बोलती हूँ पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो कुछ एक सॉल्यूशन भी लेके आइए। हो सकता है आपका कुछ सॉल्यूशन हमारा कुछ सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व है ना। क्योंकि मैंने आए दिन देखे हैं पेरेंट्स नहीं मैडम वो पेरेंट ऐसे कर रहे हैं हम लोगों ने गैंग फॉर्म किया है। देखिए ये स्कूल चलाते हैं हमें ये सब अपार्ट फ्रॉम द चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी टू द पॉइंट। अच्छी बातें बताइए इन फेवर ऑफ स्कूल इन फेवर ऑफ स्टाफ। ये चीज़ अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आई डोंट थिंक there will be any problem and the school will run very very smoothly. That's what the only target behind everything, behind each and every event. My only target is the functioning of the school should be very smooth. वही मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है यही मेरा लास्ट स्टेटमेंट है। हर चीज़ के लिए जैसे अभी तो बहुत सारे टारगेट्स हैं हमारे सामने जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मेरा फाइनल टारगेट है CBSE स्कूल बनाना है।
ये मेरा फाइनल मतलब लास्ट टारगेट, फर्स्ट एंड द लास्ट। उसके बीच में अड़थड़ा क्या आ रहा है? कोविड आ रहा है, बीच में लॉकडाउन आ जा रहे हैं। आइए ना, फीस का कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये सब जो नहीं वाले चीज़ें आ रहे हैं, इसको बोलते हैं अड़थड़े। तो ये मेरे बहुत बीच में आ रहा है। उसके बाद इच्छा है कि पहले CBSE पैटर्न को मैं इंट्रोड्यूस करूं ताकि बच्चे भी समझे चीज़ क्या है, बिकॉज नाउ वी आर फॉलोइंग अ स्टेट बोर्ड पैटर्न। तो एक इच्छा है कि राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी से लेके तो 7th तक एवरीथिंग इज बीन रेडी विथ मी, मेरे पास सब चीज़ें तैयार है, सिर्फ मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। द ओनली रीज़न कि मेरे साथ मेरे टीचर्स बोलिए मेरे बच्चे नहीं आ रहे। जब एक फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, immediately I am going to introduce CBSE pattern. Once we are used to with the CBSE curriculum, उसके बाद का स्टेप रहेगा CBSE स्कूल को खोलना, जिसके लिए एप्लीकेशन लगती है, काफ़ी सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो नेक्स्ट स्टेप है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सो वो एक लंबी प्रोसेस है। सो ये सब प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये हम लोग सब प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हैं। और उसी के लिए हम सबका एक साथ चाहिए और एक हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज अ मस्ट। ताकि हमारा भी, देखिए गुस्सा सबको आता है, isn't it? हम लोग एवरी डे इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हमारे पास आते हैं। मैं मानती हूँ एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड। क्या हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं? आप लोगों की जो, आपकी बात नहीं कर रही, मतलब जैसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, किस प्रकार से सर हैंडल करते हैं, हमारे टीचर्स हैंडल करते हैं, ये चीज़ें अभी अभी सुबह ही सर के लिए क्लैप हो जाए। अभी एक पेरेंट आके बोले कि सर ने जिस प्रकार से समझाया, एक पेरेंट है XYZ, वो आके बोलने लगे कि हम देंगे ही नहीं मैडम, पॉसिबल ही नहीं। और सबसे खराब ये लगता है कि जब फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने है, पेरेंट कैसे डिसाइड करेगा कि हम इतना ही देंगे? वायलेंट हो जाते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि भाई आप डिसाइड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग एक प्रपोजल दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। वी कैन नॉट बिकम एडमेंट। हम एडमेंट बन सकते हैं क्या? नहीं। भले ही आज हम स्कूल चलाते, बट हमारी भी एक लिमिटेशंस है, एक लाइन है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। फिर हमारे पेरेंट्स आके बोलते हैं आज इतना क्या खर्चा लगता है मैडम, क्या खर्चा लगता है, क्या खर्चा करते हैं। आई फील सो बैड। साइड का बटन, आई फील सो बैड कि हाउ कैन अ पेरेंट टर्न अप एंड से दैट कि ऐसा क्या लगता। वी नेवर स्पीक। हम लोग आपके इसमें नहीं आते, बिकॉज हमारी भी लिमिटेशन है, हम लोग आपके बारे में नहीं बात कर सकते। तो वैसे ही अगर जैसे मुझे बुरा लगता है, सर को बुरा लगता है, बिकॉज हम लोग सब कलेक्शन डिपार्टमेंट में है, एडमिन डिपार्टमेंट में, तो हमें बुरा लगता है कि कोई हमारे मैनेजमेंट को खराब हो देते। हम जहाँ हैं, हमारी स्कूल द बेस्ट, हमारे टीचर्स द बेस्ट। हमें अच्छा नहीं लगता तो डोर्स आर ओपन, वी आर नॉट फोर्स्ड एनीबॉडी, राइट? बट एज लॉन्ग एज वी आर हियर, दिस इज द बेस्ट। ये प्रीमाइसेस बेस्ट, ये रूम अच्छा है, प्रीमाइसेस अच्छा है, टीचर्स अच्छे, बच्चे अच्छे, पेरेंट्स अच्छे, दैट्स इट। जिस द मोमेंट मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, हमें चेंज होना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं हो पाते हैं, वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज द सोसाइटी। हम अच्छे तो सब अच्छे, सीधी बात। ये कुछ शब्दों से मैं अपना आप लोगों से परमिशन लेती हूँ कि अभी नेक्स्ट शायद रूपाली मिस के पास आ गया है फाइनल लिस्ट कि कौन जीता है, और एक्टिविटीज़ दीपा मिस बता देगी कि हमने साल भर में क्या प्लान किया है। लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच। Declare the winner of the game. So Manish Vakodikar sir is the winner. So he has written maximum items out of 25, 16, 17 items he has written. So winner is Manish Vakodikar. So I request ma'am to please give the. कहाँ सर, आइए आइए।
myself welcome Varsha Matraba ma'am. She came right now. So Okay. I request Deepa ma'am to welcome. I With the token of love. welcome. Yes, now our school has organized some of the competitions for the parents, all the parents, except parent member ही नहीं, सभी parents के लिए organize किया है. तो उसके हर महीने के एक डेट हम लोगों ने दी है, टाइम स्लॉट दिया है. वो टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन करना है, यहाँ आके नहीं करना है, घर से करना है. So very first competition that we are going to conduct is in October. So that is on 9th of October. और मदर मेंबर के लिए रंगोली कंपटीशन है और फादर मेंबर्स के लिए ऐसे कंपटीशन है. हमको लिंक शेयर करेंगे हम लोग, वो लिंक पे आप लोगों को ऑनलाइन रह के जो टाइम स्लॉट दिया है 10:30 to 11:30 के बीच में आपको पूरा कंप्लीट करके हम लोगों को दिखाना है. कैमरा ऑन रहेगा ना? कैमरा नेचुरली कैमरा ऑन रहेगा. अब निगरानी में रहोगे. आप सब ऑनेस्टली करेंगे तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग ऑनेस्टली करेंगे. तो ये पहले कोई टीचर आपको ऑब्जर्व करेगा. all the teachers are connected, even madam will be connected there. तो फिर अपन ऐसा कंपटीशन ले रहे हैं for a healthy relationship between parents and teachers, है ना. तो फिर ये फर्स्ट कंपटीशन है, इसका पूरा नोटिस हम लोग आपको देंगे. चला के अभी भी जस्ट आपको बता दे रही हूँ. यस सर. हाँ बोलिए. ये जो जॉब वाले हैं उनको वो टाइमिंग कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो कुछ अलग स्लॉट टाइम उनके लिए. हाँ. मैडम ऑनलाइन क्लास Weekends में ऑनलाइन क्लास भी देते हैं. Sunday we are not in the school. We are having rest on watching that day. online ना. We can just do that. हाँ बोलिए ना सर. मैम ऑनलाइन क्लास में भी हम अटेंड नहीं करते. हाँ. आज तक अटेंड नहीं किया. नहीं किया. क्योंकि दो एक लड़का एक लड़की मुझे ओके. हाँ. हम दोनों का टाइमिंग ऑनलाइन एक ही है. आपने कभी बोला हो ठीक है. सो दिस इज द कंपटीशन फॉर अक्टूबर. देन नवंबर में है 23rd नवंबर को द कंपटीशन विल बी कलश डेकोरेशन फॉर बोथ द मेंबर्स, मदर एंड फादर बोथ द मेंबर्स. ठीक है, कलश डेकोरेशन. देन इन दिसंबर 11 दिसंबर द कंपटीशन इज फ्लावर अरेंजमेंट. नहीं, हम लोग सब व्हाट्सएप कर रहे हम हैं. आपको फिर से भेजेंगे. ऐसा नहीं नहीं, है बस एक review बना कि ये कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, बस इसीलिए आपको बता रहे. फ्लावर अरेंजमेंट है और लैंटर्न मेकिंग है इन दिसंबर में. एंड देन फॉर जनवरी में तेलुगु वाले जो ज्वेलरी होती है ना वो, और काइट मेकिंग इज फॉर फादर मेंबर एंड ज्वेलरी मेकिंग इज फॉर मदर मेंबर. सो अप टिल January we are having this competitions. Every month we are having one competition. हम आपको लिंक भेजेंगे और बकायदा इसके विनर्स हम अनाउंस करके प्राइजेस इसके पहले आपको पहले फुटेज भेजेंगे, फिर पेरेंट्स कितने हमें ये होते हैं जॉइनिंग का and history. Shraddha, she's beautiful actually. And what Varsha is? ये बहुत शब्दा टीचर्स मैथ शब्दा मैथ Shraddha teaches math, science 1, lower classes, primary as well as high school. And class teacher of 5th standard. Good morning, all of you. Myself Varsha Kure. I'm teaching in 4th standard science, 4th standard maths and science, and 6th standard science. Class teacher of 4th. History means Good morning, everyone. Myself is Kirti Rao, class teacher of 3rd standard. I am taking 3rd, 4th Marathi, 5th, 6th Hindi and 8th Marathi. Thank you. Sulaksha means Myself Sulakshana Mees. I am teaching 2nd standard as a mother teacher. Good morning, everyone. I am Shubhangi Tindani. I am the mother teacher of grade 1. I am teaching English, Maths, EVS and Marathi. Sushma ma'am. Good morning, everyone. My name is Sushma
She own Mamta means Mamta means- Mamta Rathi means. Body. My name is Mamta Rathi. I'm class teacher of grade 10 and I'm teaching mathematics to grade from 8 to 10. Shraddha, please come here and introduce yourself and your subject you are teaching. Good morning. Good morning. Myself, Shraddha Mahajan, and I am teaching maths and science to grade 5th, 6th, and science 1 to grade 9 and 10th. Now I request our parent teacher representative vice president, Madam Vandana, to say a few words on this occasion as per ma'am's request. We are born speaker, ma'am. We are born speaker. आपके teacher को introduce हैं. Please. कशाबद्दल बोलायचं आहे? पण माईक काम नाही करत तुम्ही जोरात बोला. हो, आता माझा मुलगा इथनं स्टँड झालेला आहे या शाळेतनं. त्याच्यामुळे मी पुष्कळशा मधला काळ जरा नव्हती या शाळेत निवडली, पण आता तिला 9th 10th मध्ये या शाळेत घातलेला आहे. शाळेचा अनुभव मला फारच छान आहे सगळे. आणि आता मुलगी आहे यावर्षी 10thला. थोडासा आता अभ्यासाचा भरपूर त्रास होऊन राहिला आहे कोविडमुळे. सगळ्यांनाच त्रास होत आहे, आम्हाला मुलांना, पेरेंट्सला सगळ्यांना त्रास होतो आहे. अजून काय होतं मला काही और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं. मैडम if anybody wants to say something, कोई चीज शेयर करना है, कोई सजेशन देना है. मुंबई मैडम बोल सकते हैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आदरणीय मंचन आणि सगळे पॅरेंट्स खरं तर या शाळेविषयी म्हणजे माझी मुलगी अगदी KG1 पासून या शाळेमधून चांगला म्हणजे माझ्या मुलीला आणि सगळ्याच मुलांना चांगला रिस्पॉन्स पहिलेपासूनच मिळालेला आहे. चांगल्या पद्धतीने मुलगी सगळ्या म्हणजे आपण लोक म्हणतात की CBSE शाळेमध्येच मुलं तयार होतात, पण असं काही नसतं. माझी मुलगी आणि दोन्ही मुली माझ्यासाठी थोडासा चांगले पण अगदी अपडेट आणि व्यवस्थित आहे. कुठलाच काही प्रॉब्लेम नाही आहे. काही प्रॉब्लेम्स असतात अपडेट टीचर्स लोक आम्हाला नेहमी केव्हाही पण मदतीला कधी पण धावून येतात. आता ऑनलाईन जरी आहे तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही. आता माझी मुलगी दवाखान्यात ॲडमिट होती तरी पण तिने आपला अभ्यास परीक्षेच्या वेळेला योग्य वेळी व्यवस्थित तयार करून व्यवस्थित पेपर दिले. माझं एवढंच मुलांनी सगळ्या पॅरेंट्स लोकांना सांगणं असतं की आपल्या मुलांकडे जसं आपण घरचे कामं करतो तसंच मुलांकडेही लक्ष द्या. कारण मुलांकडे कसं असतं की ते मोबाईल बघतात. आता सध्या आपण पूर्वी कसं सांगायचे मुलांना मोबाईल काही देऊ नका, पण आजकाल तसं झालं नाही. कारण गरज आहे, आजची जी गरज आहे ती मोबाईलशिवाय मुलांचं होतच नाही. आता कुठलीही गोष्ट नाही मिळाली तर मुलं आपल्याला विचारत नाही, कारण त्यांना माहिती असते की ऑनलाईन सगळं अवेलेबल आहे, कुठलाही प्रश्न असो. पण कधी कधी काही गोष्टी अशा असतात की मुलं येतात आपल्याला विचारायला, कधी आपल्याला त्याची उत्तरं देता येतात, कधी देता पण नाही. असे काही प्रॉब्लेम्स येतात. पण अशा वेळेला जर आपल्याला वाटलं की नाही आपण टीचर्स लोकांना विचारू, पण टीचर्स लोक बरोबर सांगतात नाही, एखादी गोष्ट आपल्याला नाही समजली नाही, आपली मुलं ऐकत नाही. कधी कधी आपण म्हणतो टीचर्स लोकांना नाही, तुम्ही त्यांना आजकाल कसं आहे ऑनलाईनमुळे हँडरायटिंग मुलं लिहतच नाही, म्हणजे फक्त त्यांनी बघायचं आणि बस हो झालं म्हणतात. आपण त्यांच्या मागे लागू पण नाही शकत, कारण एक लिमिट असते त्यांच्यामध्ये. आपण सतत त्यांच्या मागे लागलं अरे लिहिणार आहे तो काय म्हणते जाऊ दे मी तुझ्यासमोर लिहिन, पण कसं तरी लिहिन, पण असं नको होणार. म्हणून आम्ही टीचर्स लोकांनीच म्हणत असतो की मुलांना सांगा तुम्ही हँडरायटिंग लिहा, नाहीतर आम्ही तुमचे मार्क्स काढतो. त्या आयडी काय होतं ढाकायची मुलं बरोबर हँडरायटिंग लिहितात, कारण की त्यांना माहीत असतं की माझे मार्क्स म्हणजे कटले नाही पाहिजे. मला माझे म्हणजे जे काही मुलं सगळे अभ्यास करणारे असतात, कारण 10वीच्या दृष्टीने असं असतं की 10वीचा पेपर सोडवताना काय होतं की तुमचं पहिले 10वीचा तर माझी मुलगी मोठी 10वीला होती. तिने माहिती आहे का अगदी 9व्या वर्गापासून म्हणा की 8व्या वर्गापासून हँडरायटिंग सतत घरी लिहून बघितली. पण आता ही जी ऑनलाईन मुलं आहे ना
हँडरायटिंग अजिबात लिहायला पाहत नाही. अगं आई ऑनलाईन तर आहे म्हणते. आता यावेळेला आपल्या इथे शाळेमध्ये मॅन्युअली पेपर सोडायला दिले. मागच्या वर्षीपर्यंत नव्हते, त्याच्यामुळे ते हँडरायटिंग लिहायलाच तयार होत नव्हते. पण आता व्यवस्थित हँडरायटिंग लिहितात आहे. त्यांनी काय होतं की जेव्हा आपण बोर्डाचा पेपर सोडवतो तेव्हा हँडरायटिंग जर तुमचं एकसारखं असेल, एखादं काही मध्ये चुकलं असेल, पण एखादा जो काही पेपर म्हणजे तपासणारा असतो त्याला त्याच्या एवढं लक्षात नाही. सोडत जर तुमचं हँडरायटिंग सुंदर असलं तर तुम्हाला 2 मार्क जास्तही त्याच्यामुळे पडून जातात. मी एवढं सांगणार असते सगळ्यांना की म्हणजे पॅरेंट्स लोकांना की तुम्ही तुमच्या मुलांच्या हँडरायटिंगकडे लक्ष द्या. मी पण माझ्या मुलीला सतत सांगतच असते, पण चालू आहे तसं. आणि मॅडमचा हे रुपाली मिस आहे, सगळ्या टीचर्स लोक सगळं मुलांना सहकार्य करतात. असे सहकार्य आम्हाला दहाव्या मिळणार अगदी नाही. टीचर को कुछ बोलना है, किसी को कुछ भी. अच्छा बंद झालं. अभी मौका नहीं मिलता क्योंकि सब बॅक ऑफिसवर आहे. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. सर्वप्रथम इथे येणारे सगळे पालक त्यांचं स्वागत. आणि मेन म्हणजे कसं आहे की सगळेजण आपापला वेळातला वेळ काढून इथे आहे, त्याबद्दल सगळ्यांचं धन्यवाद. बरेचदा कसं होतं की डिस्कशनमध्ये आपण बऱ्याच लोकांचे डिस्कशन होत राहते, म्हणजे बाहेर म्हणा, शाळेत म्हणा, कुठेही. तर एक गोष्ट वारंवार समोर येते, जिथे आपण स्टुडंट्सबद्दल विचार करतो तिथे एक गोष्ट नेहमी समोर येते. ती म्हणजे अशी असते किंवा पॅरेंट्सचं टीचर लोकांसोबत कोऑर्डिनेशन असणं गरजेचं आहे. पण याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे की हीच गोष्ट सगळेजण वारंवार म्हणतात. पण माझ्या मते एक मी सजेस्ट करू इच्छितो की कसं आहे की पॅरेंट्सचा टीचरसोबत संवाद हा सेकंडरी पार्ट असायला पाहिजे. सगळ्यात पहिले तुमच्या मुलांशी संवाद होणं गरजेचं आहे. हा बेसिक त्याच्यातली रिक्वायरमेंट आहे. का बरं? त्याच्यामागचा उद्देश हा आहे की बरेचदा कसं होतं की आपण त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करतच नाही. त्यांना भरपूरसे प्रॉब्लेम्स असतात, पोरांना पण आपण त्यांच्याशी कधीच शेअर होऊ शकत नाही. त्यांच्या मनात आपल्याविषयीची एक वेगळी इमेज असते. किंवा आपले हे वडील आहेत ते रागवतील, आईचा स्वभाव थोडासा तापट असला की त्यांच्याबद्दल त्यांची ती धारणा होऊन जाते की नाही आई मला रागवेल, मी कसं सांगू तिला. तर बरेचसे असे प्रॉब्लेम्स असतात जे पर्सनल लेवलवरती पण असतात आणि शाळेच्या माध्यमातून म्हणजे एज्युकेशनल लेवलवर पण असतात. पण तिथे ते लोक तुम्हाला सांगत नाही, त्या गोष्टी सगळ्यात हे करून ठेवतात, धरून ठेवतात. मग काय होतं की त्याच्यामध्ये सप्रेशन, त्या सप्रेशनमुळे त्यांच्यामध्ये डिप्रेशनचं प्रमाण वाढायला वेळ लागत नाही आणि तिथनं मुलं डायव्हर्ट होतात. मग असं होतं की बा नाही बाबा पोरांना मी सगळ्या फॅसिलिटी त्यांना देतो आहे, पण यांचं काहीच होत नाही आहे, का बरं असे वागतात आणि आपल्यालाच कळत नाही. कुठेतरी आपल्यालाच ते थोडंसं कळायला मार्ग राहत नाही त्यांना. तर माझं असं सजेशन आहे की बा तुम्ही त्यांच्याशी इंटरॅक्शन वाढवा, त्यांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते जाणून घ्या, त्याच्यानंतर तुमचं टीचर्स लोकांची इंटरॅक्शन होणं गरजेचं आहे. बरेचदा काय होतं की ते लोक या प्रॉब्लेममुळे ते लोक तुम्हाला सांगत नाही, मग त्याचा तो इम्पॅक्ट होतो त्यांच्या रिझल्टवरती. आणि रिझल्ट चुकीचा किंवा कमी लागला की आपण आपल्याला समोर एकच टार्गेट असतो, तो म्हणजे समोर टीचर. ज्यांनी शिकवलं नाही, यांनी ऑनलाईन क्लासेस काही बरोबर घेतले नाही, म्हणजे कंटिन्युअसली आपल्याला ते ब्लेमिंग असतं त्यांच्यावरती. पण त्या मला एक गोष्ट सांगा, तुमच्या मुलाशी इंटरॅक्शन झालं नाही, ही गोष्ट त्याच्या रिझल्ट नंतर तुम्ही आम्हाला सांगा, तर आम्हाला कसं कळणार की तुमच्या मुलाला कळलं की नाही कळलं. त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगा स्वतःला की बा टीचरची कुठे चुकी आहे टीचरची ती केव्हा असेल जेव्हा तुम्ही आमच्यापर्यंत ही गोष्ट आणली आणि आम्ही त्याच्यावरती काहीच करत नाही आहे, तर तेव्हा मान्य करतो की आमची चुकी असेल. म्हणून माझी एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सगळ्यात पहिले टीचर्सला ब्लेम करण्यापेक्षा आपल्या जनरली कोणी करत नाही, तुम्ही चांगले पॅरेंट्स आहात, ब्लेम नाही करत तुम्ही, पण तरी जनरल म्हणजे नॉर्मल प्रोसेस आहे ती की काही झालं की नाही पॅरेंट्स म्हटलं की तो पहिले टीचरवर जाऊन भेटतो की असं आहे तसं आहे, तुम्ही लक्ष दिलं नाही, तुम्हीच हे केलं नाही, तुम्हाला तो ऑनलाईन असतो, तो क्लासेस अटेंड करतो, तुम्ही सांगितलं नाही वगैरे वगैरे भरपूरसे असतात. पण सगळ्यात पहिले तेच आपलं मोठी असायला पाहिजे की सगळ्यात पहिले आपलं इंटरॅक्शन आपल्या मुलांशी वाढवा, की माझी विनंती आहे तुम्हाला. बस हे 2 शब्द. गेम्स रखे हैं पेरेंट्स लोग के लिए, वैसे ही हर महीना अगर हर बच्चों के लिए रखे तो उनमें और एक्चुअली कैसा अगर वो सुनेंगे कि टीचर्स लोगों ने पेरेंट्स लोग के लिए रखा है तो हम लोग के लिए क्यों नहीं. वो बोलेंगे पेरेंट्स टीचर से जुड़ रहा है, लेकिन बच्चा बोलेगा कि हम लोग नहीं जुड़ पा रहे टीचर से, इसलिए थोड़ा सा हाँ जो कि बहुत ज़्यादा धन्यवाद. सब टीचर इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं. मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इतना अच्छा
जितना मैं स्कूल में बहुत अच्छे सुनती हूँ, आती हूँ स्कूल बहुत अच्छे सुनती हूँ, उन लोग का प्रोनाउंसिएशन, बच्चों को एक चीज़ बताना बहुत अच्छा लगता। और आरती मैडम हमेशा कंपटीशन जो रहा सडनली डालती है, अगर नहीं हम लोग को नहीं समझा तो वो हमको उस बारे में समझा। और ये चीज़ टीचरों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैडम, मेरे पास एक न्यू एडमिशन आपकी स्कूल में हुआ है नमन पांडेकर, उस वो पेरेंट्स का बच्चा पहले न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल में था। उन्होंने मुझे पूछा था तो मैंने बोला मेरी बड़ी बेटी पढ़ती है स्कूल में, आप डाल दीजिए। उन्होंने मुझे कई दिन बाद फ़ोन किया, मैडम ऐसा दीदी ऐसा बात है वैसा बात। मैंने देखिए हर पेरेंट्स को हर स्कूल से प्रॉब्लम होता है, बोले नहीं वहाँ पे जब फीस पेड कर देंगे तो ऐसी ऐसी बातें सामने। हर पेरेंट्स को हर स्कूल से प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जैसे घर में आप एक सदस्य है, हर एक सदस्य कहीं ना कहीं निकलती है। मैंने बोला मैडम दीदी मतलब आगे पढ़े एक साल में आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो स्कूल में कैसा क्या है। सडनली आप उसका निर्णय नहीं ले सकते हैं, सडनली आप उसका निर्णय नहीं ले सकते किसी चीज़ का। तो वो बोले ठीक है मैं पूरा साल बाद देखती हूँ, उसके बाद चेंज मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करना कि मेरे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड बहुत बड़ी बात फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रही है। और यही इसी टीचर ने मेरे बच्चों में डेवलपमेंट किया। अपन बोलते हैं बीज अपन जब जमीन में डालते हैं उसमें अच्छी हवा पानी धूप आई तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। और ये चीज़ मेरी बच्ची की इसी स्कूल में डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। और काश मेरे लाइफ में आप जैसे टीचर्स होते तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से बोल रहे हैं। और अभी ये भी चाहती हूँ कि सुधा मिस मेरे टीचर बनकर गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ओके, बहुत ही बेहतरीन रहा ये कोऑर्डिनेशन। ओके, लेट इट कंटिन्यू इन डिफरेंट वे। Vote of thanks. We should not say vote of thanks because thanks is a very small word with a huge meaning and better beginning. Our relations are very informal, but coming to the formal way, it's my proud privilege to stand before you and give a vote of thanks. It's my proud privilege to present a vote of thanks before you people. Thanks is a small word with a huge hidden meaning. So I extend my heartfelt gratitude towards our beloved principal who is working day and night for the benefit and upliftment of our teacher and school as well. Plans and strategies or any more thing. So I extend my heartfelt gratitude towards our beloved principal ma'am, our Aarti madam, Shaina ma'am, are also cooperating us out of the desk in desks. Then, of course, dear teachers, parent teacher representative. So, last but not the least, out of this off the screen and on the screen, those who help us out in making this successful event. Thank you. Be safe, be secure. Enjoy your life. And congratulations to Nina.